visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start. बेटा all be become active. समस्त active हो जाओ. Start करेंगे. Okay. So first question देखो. I think सबको आएगा ये. Easy question है आप लोगों के लिए. 67 number question. The expected electronic configuration of an element with atomic number 105 will be dash. 4 options are there. You have to choose one option. So go for it. What will be the electronic configuration? Which option will be your right answer? Sahil, Rajeshwar, Ipsita, Sonalika, do all, Mrutyunjay, all old students join fast to class coach. Please try to do that. Very easy question, you can do it. Atomic number 105. Yes, which option? 1 minute will be there. Sir, C option. Sir, C. Option D. Sir, Option D. Option. Sir, C, sir. C, sir. Okay, C, option C. 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 So this is that. Okay, no problem. So atomic number, it is your 105. So it's coming between helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So radon 86 here. So you can take radon 86. So take radon 86. Okay, so 105 से यहाँ पे 86 atomic number आ गया. तो रहा कितना? आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा? 19. 19. 19 electrons. 19 electrons. That means 19 electrons you have to arrange. आपको 19 electrons को arrange करना पड़ेगा. तो जो रेडन है वो कौन से सीरीज का एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6. मतलब आपका 7 नंबर से शुरू होगा. So it will be 7s2. Then it will be 5f14. 5f14 and then it will be 6d3. किसी को कोई दिक्कत है? 7s2, 5f14, 6d3. Then you have to arrange that. This is not the actual electronic configuration. I have already told you. You have to arrange that according to your valence cell, penultimate cell, and your inner cell. Okay. So when you will arrange like that, it will be radon 86. Radon 86, 5f14, 5 आएगा, उसका 63. Then it is 7s. Clear all of you? आगे चलें. Anyone having any doubt in this question? Sir, No, sir. sir, ये तो 7s164 होना चाहिए ना? कौन वाला जियो? Sir, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा माने 60 रो स्टेबल माने मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 5 हाफ फिल हेबा ପାଇଁ ତ 64 ହେଇ ପାରିବ ବି ଏଠି 7s164 No. ତମକୁ ମୁଁ 105 ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଦେଇଥିଲି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ. ନା 105 ର ନାଇଁ 105 ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା କି ତମର ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ପାଇଁ? ନା ଦିଆ ହିଁ No. ନଥିଲା So except that ଯୋଉ ନମ୍ବର ତମ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ତା ଛଡା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ହବନି. Okay. So this is the general electronic configuration will be there. Next question. Sir, କୁହ sir, background ର noise କୁହ. ଆସୁଛି. Sir, କାହା background ଗୋଟେ noise ଆସୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ mute. Please mute yourself, beta. All mute yourself when I will ask the question. When you have to get the answer, then just unmute yourself and you will tell your answer. After that, please mute yourself because many students are there in the meeting. So when one will unmute his mic, so total class along with me and all students will be disturbed. Okay. So please mute yourself. When you have to give the answer or you have any doubts, then please unmute yourself and you can ask. Okay. ठीक है बेटा. चलो next question. This is your Kerala PMT question 2006. So see here, the question is that angular momentum of an electron is 0. In which orbital may it be present? एक इलेक्ट्रॉन का angular momentum 0 है, तो वो कौन से ऑर्बिटल में रह सकता है? फर्स्ट, केरला का जो क्वेश्चन होता है वहां पे 5 ऑप्शन देता है. ठीक है, वो पहले 5 ऑप्शन दे रहा था, इसलिए 5 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे. Yes. The angular momentum of an electron is 0. In which orbital may it be present?
Yes. 2s. Which option? 2s. Yes. 2S. 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 Yes, sir. 2S. Maximum Yes, sir. students are saying 2S. So the option will be answer will be 2S. So Yes. all mute yourself. All mute yourself. I will solve the question. तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वहां पे आपको बताया गया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको क्वांटम नंबर. Yes, sir. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. सो आपका जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था इट इज योर एल इंटू एल प्लस 1 होल रूट ओवर इंटू एच बाई 2 पाई. एल इंटू एल प्लस 1 का होल रूट ओवर इंटू एच बाई 2 पाई. So this is your formula for calculation of angular momentum. तो ये बोल रहा है Zero. एंगुलर मोमेंटम आपका 0 है. फिर अगेन someone on muting. Mute yourself. Wait, when I will solve the question you have to give the answer, or you have any doubt then you will ask. Okay. So L into L plus 1 whole root over into h by 2 pi is equal to 0. So he is saying that angular momentum is 0 here. That means यहाँ पे कौन सा वैल्यू 0 होने पर ये टोटल वैल्यू 0 हो सकता है बोलो. यहाँ पे कौन सा वैल्यू 0 होने पर ये टोटल वैल्यू 0 होगा. L. यदि यहाँ पे L का वैल्यू 0 हो जाता है, यदि यहाँ पे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू यदि 0 होता है, then the total value of the angular momentum will be 0. ओके. सो इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि 0 हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका L 0 होगा ताकि जाके आपका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. तो L किसके लिए 0 होता है? कौन सा सबसेल के लिए? A S. सबसेल के लिए आपका S. 0 होता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर. सो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, A ऑप्शन, जहां पे आपको 2s दिया गया है. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स a dash. The electronic configuration represents a dash. This is the West Bengal JEE question. Go for it. The electronic configuration, that is that given 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9. It will represent a dash. कौन सा ऑप्शन होगा आपका? मेटल एटम, नॉन मेटालिक अनायन, नॉन मेटल एटम एंड मेटलिक कैटायन. Which option will be your correct option? Yes. Which option? Metals. Yes बेटा. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आपका आंसर? डी ऑप्शन. ओके. एनीवन? A, sir. A. ए ऑप्शन. ओके, ए ऑप्शन. Sir, A. Metal atom. Okay. So maximum students are saying the option, the correct option will be your A option, that is your metal atom. Okay. So जितने लोगों ने आपका आंसर बोला, who is comfortable to give his explanation, he can say or she can say. Tell me what is the explanation behind your answer. Sir, atomic number ta 27 aluminum ro. Wait. One boy is saying, please tell beta. Then after that, anyone there is problem, then you have to tell. Okay. Please tell. एक एक करके बोलो. Tell. बोलो कौन बोल रहा था, बोलो अभी. Sir, eta cobalt ro atomic number ta asu. Cobalt ro atomic number अछि, that is your 29. Okay. 29 atomic number. 27. 27 atomic number. Okay, 27 is the atomic number of your cobalt. So आप लोगों ने बोला cobalt का atomic number है, तो इसीलिए ये एक metal atom होगा. Anyone कुछ नया चीज कोई ऐड करना चाहता है इसमें? ये सबका आंसर यही है. ब्रजेश्वर? Yes sir. सर ट्रांजिशन मेटल मतलब ये सर डी Okay, ब्लॉक so में same जा रहा answer. था डी ब्लॉक रे अछि बोले मेटल. Okay, so that means your answer is same. For like the your जो बच्चे ने अभी बोला हमारा, उसी का आंसर के साथ तुम्हारा सेम है, सब लोगों का सेम है. No extra explanation. Okay. So you are telling sir there is the number of electrons. आप लोगों ने किया क्या इसको? आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया. 9 यहाँ पे है आपका 9 plus 6 15, then 17, then 6 23, then it is your 24 25, then 26 27. So total number of electrons sir, it is 27. Total number of electron, that is your 20.
then saying sir atomic number, then it will be 27 and atomic number 27 वाला जो एलिमेंट है आपका वो कोबाल्ट। बच्चों मैंने जब आपको पढ़ाया था न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या मैंने आपको ये बोला था कि एटॉमिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है? नो। या मैंने ये बोला था कि आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को तब रिप्रेजेंट करता है जब आपका एटम न्यूट्रल हो? क्या यहाँ पे एटम न्यूट्रल है इस तरह से कोई चीज बोला गया है क्वेश्चन पे? नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन पे, कहीं पे भी यहाँ पे नोटेशन नहीं दिया गया है कि ये आपका एक न्यूट्रल एटम है। तो जाके आप इसके इलेक्ट्रॉन नंबर को एटॉमिक नंबर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली आपका प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 27। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एटॉमिक नंबर 27 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो आप लोग बोल रहे हो कि सर मान लो ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 27 है, तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर 27 है, और हम लोगों को पता है जो 27 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो आपका कोबाल्ट है, ठीक है। तो बच्चों कोबाल्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 27 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बोलो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन किस बीच आता है ये? 1836 के बीच में। सो यू हैव टू राइट आर्गन, आर्गन। तो यहाँ पे चला गया आपका 18, तो 28 माइनस 18 दैट इज 9, तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो हीलियम नियॉन आर्गन ये 3 नंबर वाला एलिमेंट है तो 4 से शुरू होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4s2, ये हो गया आपका 20, और उसके बाद आएगा आपका 3d7। So the electronic configuration of your cobalt is 4s2 3d7. Plus tell me in this electronic configuration whether you are seeing that the electronic configuration is relating to your 3d7? No. No, sir. Brother sir, No, sir. साहिल क्या हुआ? क्यों गलती हो गया आप लोगों का? 4s2 3d7 हो रहा है बेटा। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7, लेकिन तेरे को यहाँ पे 3d9 दिखा रहा है, तो क्या करें? ये तो कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट तो ये नहीं है। अभी हमको क्या करें, अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? कौन सा होगा बेटा? सर ये एक आयन होगा एंड उसका जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ले गया है, ले गया जाए है, सो इसलिए एक आयन ही होगा, मेटालिक आयन, पैटर्न। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सर ऑप्शन बी, नंबर मेटालिक बी। पैटर्न। वेट करो बेटा थोड़ा, आई जस्ट वांट 1 सेकंड, जस्ट बिकॉज़ देयर इज अ कॉल, जस्ट वेट। Okay, see students. अच्छा, तो हमने देखा यहाँ पे कोबाल्ट तो होता नहीं है, तो मान लो यहाँ पे आपका न्यूट्रल एटम तो ये है नहीं। ये आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ये न्यूट्रल एटम का तो है नहीं, ठीक है। तो आइदर ये हो सकता है कैटायन, नहीं तो ये हो सकता है आनायन, ठीक है। तो ये वाला दोनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, मेटल एटम और नॉन मेटल वाला एटम ये कैंसिल हो गया हमारा। अभी हमारे पास बचता है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन दोनों में से हमको एक आंसर करना है, ठीक है। आइदर ये हो सकता है कैटायन, नहीं तो ये हो सकता है आनायन, ठीक है। अच्छा तो चेक करते हैं, तो कैटायन होगा या आनायन होगा? बच्चों इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि ये आनायन होता तो ये जरूर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जरूर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टेबिलिटी होता है वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से पर्टिकुलरली वहां पे काम करता है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करोगे
तो वहां पे आपका एनर्जी का इम्बालांस होता है, वहां पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसीलिए यदि आप देखोगे यहाँ पे 3D9 है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3D10 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो जरूर है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, किसी ने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, जरूर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इसलिए 3D9 हो गए। अच्छा, यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लो जैसे हम Na प्लस कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है न्यूट्रल एटम से, ठीक है। तो यदि यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं इससे, तो इसका न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा, 28। किसको समझ में नहीं आया? एनीवन? कौन समझ नहीं पा रहा है? I am giving you the approach, how to approach this type of questions, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ओके। तो कैसे आप इसको अप्रोच करोगे? एनीवन जिसका डाउट हो रहा है? सर और एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो, पहले बार आपने देखा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर को हम ऐड कर लेंगे, इस क्वेश्चन को तुम अप्रोच कैसे करोगे? देखो, पहले आप इसका इलेक्ट्रॉन नंबर को ऐड कर लो। इलेक्ट्रॉन नंबर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 27। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिलेट करो इसके एटॉमिक नंबर के साथ। मान लो Z इज इक्वल टू 27, मान लो ये एटॉमिक न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे जो 27 है उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो जैसे हमने कोबाल्ट के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आपने लिख लिया, तो आपने देखा ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसका उस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 27 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब ये वाला आंसर चला गया। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन चले गए, मतलब ये न्यूट्रल एटम है नहीं, आइदर कैटायन हो सकता है, नहीं तो ये अनायन हो सकता है, ठीक है। तो आइदर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है या 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है या ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो बेटा इसका जो वैलेंसी सेल है 3D9 इसका वैलेंसी सेल है, तो जरूर यहाँ के उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सर ये कैसे आप दावे के साथ बोल रहे हो? क्योंकि बेटा यदि ये एक अनायन होता तो जरूर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता, और डी का जो हाफ फील्ड स्टेट है, डी का जो इसका हाफ फील्ड स्टेट है, तो यहाँ पे इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बेटा बोलो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ओके। तो इसीलिए आप यदि देखोगे तो जरूर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 था मान लेते हैं, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D9 बन गया है। लेट 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका जनरल क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3p6 d10, ये हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करो कितने, इसके लिए हाँ बेटा बोलो, कुछ डाउट है क्या किसका? नहीं सर। ओके, तो यहाँ पे 10 करने के बाद इसको ऐड करो, क्या हो रहा है आपका 10 + 6 16, then 18, then your 24, then 25 26, then 27 28, आपका यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, 28 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर आपका 28 बन गया। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 28 ले जाओ, लेट उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 28 के लिए, 28 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या होगा बेटा? आर्गन चला गया, 4s2 4s2 3d10, सॉरी हाँ ओके सॉरी 4s2 3d8 बेटा। तो अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, क्या इसके साथ इसका कोई रिलेशन है? के है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है बेटा, नहीं है। तो मतलब बेटा आप ये इलेक्ट्रॉन 1 लूज नहीं कर रहा है, लूज तो कर रहा है, ये पता लग रहा है, यानी 1 लूज नहीं कर रहा है,
यदि एक लूज करता तो उसके लिए यहाँ पे आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो 4:3 है, लेकिन यहाँ पे तो 4 यहाँ पे 3d9 दे दिया है बटा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जरूर एक इलेक्ट्रॉन से और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अभी एक इलेक्ट्रॉन के बाद और एक इलेक्ट्रॉन को चूज करो, ठीक है। मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s 2p6 AK 3d10, और के बाद 3d के बाद कौन आता है, 3d10 के बाद कौन आता है, अरे 3d10 के बाद कौन आता है अबव प्रिंसिपल में, 4s है। तो मान लो यहाँ पे 4s पे और एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3d10 4s1 हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी देखो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो है, 1, दिस इज 11, देन इट इज 17, देन योर 18 19, अरे कहाँ पे इधर उधर, सॉरी 2p, अच्छा 2p6 मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया 3d10, देन यहाँ पे हो गया 4s1, सो रुको 3d10 4s1, so it will be 11 6 17 18 19 6 25 then 27 then 28। तो यहाँ पे आपका टोटल इलेक्ट्रॉन बन रहा है 29। यदि आप 4s पे एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर 29, तो 20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ बेटा, क्या होगा, आर्गन 4s2 देन उसके बाद होगा 3d9, और आप लोगों को पता है ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 3d9 हो रहा है, इसीलिए 4s इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में आता है, तो इसीलिए हो जाता है आर्गन 310 4s1। तो ये क्या हो गया बेटा, कौन सा हो गया आंसर, ये कौन सा एलिमेंट है, कॉपर, कॉपर हो गया बेटा। ये कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज रहा है और कैटायन बना है Cu2 प्लस डबल कैटायन, डबल चार्ज, सो द करेक्ट आंसर इज योर मेटालिक कैटायन। किसको पता नहीं चला, किसको डाउट रहा इस क्वेश्चन पे, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा कौन सा समझ में नहीं आया बेटा तेरे को, बताओ बेटा, आपने जो लास्ट को जो कहाँ किया से समझा है, लास्ट को जो किया समझ में नहीं आया। देखो तो मैंने आपको बताया कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। मान लो इस तरह से आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, देन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे बनता है 20 कितना 3 20 9 6 15 देन 17 देन 27। तो यहाँ पे आपका टोटल इलेक्ट्रॉन बनता है 27, टोटल इलेक्ट्रॉन आपका बनता है यहाँ पे 27। बेटा उसको एटॉमिक ले जाओ, लेट आया हमें, ये हम चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो Z इज इक्वल टू 27, Z यहाँ पे 27 बन रहा है, तो 27 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो झट से, क्या हो गया, आर्गन 4s2, देन क्या होगा 4s2 3d7, ओके पता चल रहा है बेटा, ओके। तो ये बन गया तेरा 4s2 3d7। तो मुझे अभी बोलो ये पर्टिकुलर ये जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लिखे, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो दिया गया है क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसके साथ कोई रिलेशन है? नो सर। तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल। तो मतलब ये एक न्यूट्रल एटम है नहीं, तो न्यूट्रल एटम के लिए जो ऑप्शन आपका था ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, उसको कैंसिल आउट करो, उसको उड़ाओ यहाँ से। तो मतलब आपका आंसर आइदर सी होगा नहीं तो डी होगा, सी होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है। अच्छा तो सर ये आइदर नॉन मेटालिक एनायन हो सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नहीं तो एक मेटालिक कैटायन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन है, आइदर पॉजिटिव होगा कैटायन बनेगा, नहीं ये नेगेटिव होगा, तो उसी के हिसाब से हम आंसर करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बेटा वैलेंसी सेल में चले आओ, वैलेंसी सेल यहाँ पे है 3d9, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा मुझे बोलो यहाँ पे जो आपका डी सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसका जो फुलफिल्ड स्टेट है 10 इलेक्ट्रॉन लेने का जो उसका कैपेसिटी है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, जरूर है।
ठीक है। अच्छा अभी मुझे बोलो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देना, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इस सेल से? नहीं तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन था वो ये लूज कर रहा है, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है अपने सेल पे। ये समझ में आया या नहीं? ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? हाँ सर। नहीं आया? यस सर। अच्छा तो मैंने बोला कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, आइदर इसने ये इलेक्ट्रॉन को अपने लिए लिया है, नहीं तो ये अपने लिए छोड़ा है इसको, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से लूज किया है। ठीक है। तो अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन है, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, मान लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो मतलब यहाँ तक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने गेन किया है। ठीक है, तो मतलब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो हो गया 1s2 2s2 2p6 then 3s2 then 3p6। वो मैं एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू से आपको पहले वाले में समझाया था, ये और एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जल्दी हो जाएगा इसमें। सो इट विल बी 3s2 3p6 then 3d8। समझ रहा है या नहीं? मान ले तेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, आया है, एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, तो इसलिए तेरा जनरल था 3d8 और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि तू मान रहा है कि एक अनायन है, लेट ये एक नेगेटिव आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसके तरफ है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है अपने वैलेंसी सेल में, तो मतलब यहाँ से तक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d8 तक। अरे ठीक है या नहीं? 3d8 तक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो यदि 3d8 तक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो नॉर्मल स्टेट में है, तो ये कितना होता है इलेक्ट्रॉन नंबर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। so 8 plus 6 14 then 15 16 then 23 then 25 then 27। अरे ठीक हो रहा है? यदि यहाँ पे 38 होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है यहाँ पे? कैलकुलेट करके बोलो। बोलो 3d80 होता है तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 26। So that means the total electron in the ground state of the atom is 26। तो 26 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहाँ पे, is equal to 26 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? R1 4s2 3d6। अभी चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ रिलेशन है इसके साथ? नो सर। तो यहाँ पे तेरा ये वाला ऑप्शन चला गया। तो अभी तू चाहे तो ये वाला ऑप्शन को टिक कर सकता है, यू कैन गेट योर 4 मार्क्स, बट दिस इज योर क्लास सो आई हैव टू अंडरस्टैंड यू। ओके, तो आपको समझाना है मेरा बात। तो आंसर तो मेटालिक कैटायन बनेगा सर, लेकिन कैसे बनेगा? तो बेटा हमसे ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपने वैलेंसी सेल से, अपना जो फुलफिल स्टेट था वहां से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लेट एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं, तो यहाँ पे लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन। शायद यहाँ पे 3 था, शायद यहाँ पे 10 था, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, -1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया है 9। तो लेट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यदि एक इलेक्ट्रॉन था तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आया 3d10। 3d नहीं आएगा क्योंकि इसका आयोनाइज स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। यदि ग्राउंड स्टेट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करेंगे तो ये हो गया 3d10। तो अभी फिर से कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 28 हो जाएगा। ठीक है या नहीं? यदि यहाँ पे 3d10 होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 28 होगा। ओके, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन यू विल राइट, क्या कुछ कोई बोल रहा है? एनीवन? हेलो ब्रजेश्वर, साहिल? ओके ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d10 यदि आता है तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन बनता है 28। लेट इसको हम एटम नंबर के तय लेके कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बनेगा गन, देन बनेगा 4s2, देन क्या बनेगा? 4s2
क्या बनेगा 3D10 3D8 3D8 सर 8 सर। ओके सानल 3D10 है नहीं 4:3 3D8 ओके सो 4:3 3D8 तो बच्चों देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन दिया गया है क्या यहाँ पे 3D8 आपका आता है कोई आता है यहाँ पे ये आपने ग्राउंड का बनाया है लेकिन ये आता है क्या नो 4s1 3D9 हाँ तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता है लूज तो करता है ये पता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नहीं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेट इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन मान लो ये अपने वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो मतलब लूज किया है 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि इसके पास अभी 9 है तो मतलब 3D10 हो गया और जो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कहां से लूज किया है इसके नेक्स्ट वाले सबसेल से सो इसका जो नेक्स्ट वाला सबसेल आता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सो इट विल बी 4s सो यहाँ पे 4s1 बनाएंगे 3D10 4s1 तो यहाँ से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसलिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है लेट हम ये चेक कर रहे हैं सो यदि हम 10 लेते हैं यहाँ पे और पे 4s1 लेते हैं तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा ये तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 इस तरह से आप लिख लो 3D तक उसके बाद हो गया आपका 4s1 अभी काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन 29 और लेट दैट इज द एटॉमिक नंबर उसको एटॉमिक नंबर ले जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या होगा आर्गन 4s2 3D9 और आप लोगों को ये पता है ये एक एक्सेप्ट हाँ बोलो ओके so this is your 4s2 3D9 and you know this is the exceptional electronic configuration already हमने डिस्कस किया था तो ये क्या हो जाएगा अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसको फुलफिल स्टेट में लाएगा so it will be 3D10 4s1 3D10 4s1 so who is the answer ऑप्शन तो मेटालिक कैटायन है लेकिन पर्टिकुलर आंसर कौन सा है कॉपर है इसका एटम और इसका स्टेट है कॉपर ठीक है अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा था क्लियर हुआ नेक्स्ट चलो इतना टाइम लोगे कौन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन maximum number of electrons in a subcell of an atom is determined by the following dash which option theoretical question direct answer formula है 2n square 2n square 2n square 4l plus 2 okay so 2n square so maximum students are saying 2n square and some students are saying 4l plus 2 so कौन सा होगा बेटा सर 4l plus 2 ही होगा 4l plus 2 so 2n square for electrons in a cell not in 4l subcell plus 2 subcell I के think लिए Kalim is saying or Mrutyunjay who is saying Kalim Kalim and some 2 or 3 girls are also saying that is the answer 4l plus 2 लेकिन जो लोगों ने बोल दिया 2n square क्या आपने देखा क्वेश्चन क्या दे रहा है वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल सबसेल मतलब कौन S P D F तो उसके लिए हम L का वैल्यू लिखते हैं उसके लिए हम L का वैल्यू लिखते हैं एज इक्वल क्वांटम नंबर का N का वैल्यू नहीं देखते हैं वहां पे N का वैल्यू होता है सेल के लिए तो यहाँ पे जिस लोगों ने 2n स्क्वायर आंसर दिया उनका -5 जिन लोगों ने 4l plus 2 उनका करेक्ट so maximum number of electrons you can calculate in a subcell of an atom by the formula 4l plus 2 this is your AIPMT question 2009 next question which of the following is not permissible arrangement of the electrons in an atom यहाँ से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है sir B option सर डी होगा B कलीम वेरी गुड डी मृत्युंजय सर डी राजेश्वर सस्मिता इप्सिता सोनालिका okay option B maximum students are saying option B Sahil Sir, no idea. no idea
अब तक भी नो आइडिया? कैसा होगा बेटा, कैसे बनेंगे? क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर नहीं क्लियर होगा तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे? क्या दिक्कत है बोलो, जो डाउट हो रहा है बोलो, क्लियर करेंगे। करना है, सबको करना है। ब्रजेश्वर यस सर। एक्सप्लेन करो इसे। बच्चों ने क्यों आंसर ऑप्शन बी बोला? क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करो, सब बच्चों सुनेंगे। पता नहीं। क्या बेटा ये पता नहीं कैसे? बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो कैसे चेक करोगे आप सर माइनस बेटा? एल टू प्लस एल। वेरी गुड। ओके, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन, साइलेंट एवरीवन, साइलेंट एवरीवन, साइलेंट, आई एम सेइंग, इफ आपको इस तरह का कभी भी क्वेश्चंस आपको देता है एंट्रेंस में, तब आप चेक करोगे। यहाँ पे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है स्पिन क्वांटम नंबर पे, तो ये वाला ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना है एल और का वैल्यू। आप चेक करोगे एल और एम वैल्यू, जल्दी करने के लिए, अप्रोच करने के लिए क्वेश्चन को आप चेक करोगे एल और एम का वैल्यू। आप लोगों को पता है कि जो एम का वैल्यू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, इट विल रेंज फ्रॉम माइनस एल प्लस एल, माइनस एल से लेके प्लस एल तक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। अभी आप चेक करो, पहले ऑप्शन में आपका एल दिया गया है 3, तो उसका मतलब आपका जो एम का वैल्यू होगा वो होगा -3 से लेके +3 तक। तो -3 से और +3 के बीच में तो 0 आता है, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, छोड़ो, नेक्स्ट ऑप्शन में चले आओ। एल का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो मतलब इसका इनका वैल्यू होगा वो होगा -2 से लेके +2 तक। तो -2 से और +2 के बीच में -3 तो नहीं आता है। -2 और +2 के बीच में -3 आता है शायद? -2 और +2 के बीच में -3 आता है? नो सर। नो सर। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, तो आंसर हमें यहीं से मिल गया। 30 सेकंड में आंसर हो गया हमारा। जल्दी जल्दी करोगे तो 30 सेकंड में इस तरह से आंसर हो सकता है। ओके ठीक है, रुको रुको, मैं गलती से स्क्रीन चला गया। और भी है, बच्चे कंप्लीट हो गया क्वांटम नंबर, क्यों नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, वो चेक करें। देखो ये 94 देखो। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए क्लोरीन एटम। दिस इज योर दिल्ली पीएमटी क्वेश्चन। The correct set of quantum number for the unpaired electron of a chlorine atom. पढ़ के आओ सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर बोलो। 1 मिनट में करना है इसको। नहीं हो रहा है तो घर में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की कमी है। नोट्स चाहिए, जो चाहिए पूछो, जैसे वो कल बोल रहे थे रात में नोट्स, ये आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद नोट्स लो, पढ़ो, क्वेश्चन करो। क्या होगा बोलो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर क्या होगा, उसका ठिकाना क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का? कौन सा ऑप्शन है हमको टिक करना है? मृत्युंजय, श्वेता, श्वेता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन होगा सी। ओके, जिसने ऑप्शन सी बोला, हमारे जो बच्चे ने हमारा सी ऑप्शन बोला, प्लीज एक्सप्लेन करो बेटा, सी आपका ऑप्शन कैसे हुआ, बताओ, स्टार्ट। सर सी इसलिए होगा कि सर सी हो। जो लास्ट में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3p5 होता है, तो ऑल द 5 आर अनपेयर्ड रुको इलेक्ट्रॉन्स। रुको 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 रुको, स्टॉप। आपने बोला सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिखो, बच्चों को समझना है स्टेप बाय स्टेप। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपने बोला? 17। रुको, वो जो लड़की हमारी बोल रही थी उसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि पता चलेगा कि सब लोगों को ही नहीं ये इस तरह से होता है, बच्चों ने कर रहे हैं इस तरह से। हाँ बेटी बोलो, इसका एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर 17, जी सर। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन 10 3s2 3p5। ओके, नियॉन 10 3s2 3p5। अच्छा, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? बोलो। अरे फ्रीली बोलो, कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, तुम बोलो किस तरह से तुमने किए उसको बोलो ताकि बच्चों को भी समझ में आएगा। करो। तो p ऑर्बिटल में इसमें हम लिख रहे हैं कि 3s2 जो है वो तो 2 फुलफिल है, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 3p के लिए, नहीं? हाँ अच्छा, ठीक है, 3p ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है 3p के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कि पहले तो हम 3 को फुलफिल करेंगे, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर फर्स्ट ऑर्बिट में पेयर हो जाएगा, सेकेंड उसका जो ऑर्बिटल है उसमें भी पेयर हो जाएगा, और जो लास्ट वाला बचेगा उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अच्छा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारा 3p के अंदर है, नहीं? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट चल लो। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ सेल होगी वो 3 होगा, तो जो वेरी नंबर गुड, ऑफ क्योंकि यहाँ 3p में है, 3p हाँ में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, तो मतलब n वैल्यू हमारी हो गया। सी होगा। तो अच्छा, पी हाँ, इसी then p अजीमुथल के अंदर क्वांटम है, p नंबर। सॉल्व के अंदर है, हाँ, तो इसके लिए अजीमुथल इसके क्वांटम लिए उसका नंबर का वैल्यू वैल्यू 1 1 हो ही जाए। होगा। हाँ, तो मैग्नेटिक अच्छा, क्वांटम n और नंबर, l मिल गया। नेक्स्ट। हाँ, इसमें फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 दी है, तो वो 1 और -1 के बीच में आ रहा है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू माइनस से प्लस l, तो मतलब -1 से लेकर +1 तक होगा। तो हाँ -1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है? हाँ, अच्छा, तो इसके नेक्स्ट। लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, तो वो मालूम नहीं, तो इसलिए प्लस और माइनस से दोनों दे दिया है। अच्छा, तो इसी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका फेवरेबल होता है? सी। वेरी गुड। किसको समझ में नहीं आया बेटा? व्हाट इज योर नेम जिसने एक्सप्लेन किया दीक्षिता। अभी? दीक्षिता। वेरी गुड वेरी गुड। इप्सिता, किसको समझ में नहीं आया जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया? किसको समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन को हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लिखना है क्वांटम नंबर? क्वेश्चन बेटा इस तरह से आ रहा है, ठीक है? ये तो 2009 का क्वेश्चन है, अभी तो थोड़ा एनसीईआरटी से टॉस करके वो क्वेश्चन देता है, ये सब तो बंद हो गया, लेकिन हमको प्रिपेयर तो उसी लेवल का करना है ना। अरे क्लियर हुआ सबका? कलीम, yes sir, clear. सोनालिका, श्वेता, बेटा जो लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो खराब मत याद मत करना, ठीक है? जिसका नाम पार्टी में मतलब है माउथ में, उसको बोल देता हूँ मैं। ब्रजेश्वर, साहिल, ये सब हुआ ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लो, आपके आप टेट का क्वेश्चन आ गया, अभी इसको कर लो थोड़ा। आपका ओडिशा जेई का क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn+3, जल्दी। यस, व्हिच ऑप्शन? बेटा म्यूट हो जाओ सब, म्यूट हो जाओ, मैंने बोला था क्लास से पहले म्यूट होने के लिए। हाँ, अभी करो, फोर म्यूट हो होगा जाओ बेटा। कौन सा ऑप्शन होगा? सर, ऑप्शन सर नंबर 4 सी होगा। ऑप्शन सी होगा। यस सर। ये होगा, किसी का और ऑप्शन है क्या? म्यूट सर हो जाओ, 4 म्यूट हो होगा। जाओ, जो बोल चुका है म्यूट हो जाओ। हाँ बोलो, अभी किसका और कोई डिफरेंट आंसर है? जिसका डिफरेंट आंसर है वही अनम्यूट होके बोलो, नहीं तो मुझे पता लगेगा कि मैक्सिमम लोग 4 ही आंसर बोल रहे हैं। ब्रजेश्वर, ब्रजेश्वर, साहिल, नो वन इज रेस्पॉन्डिंग, क्या हो गया बेटा? अच्छा, सोनालिका, कलीम,
Sir, sir, 4 Explain. actually I'm not sure. एक्सप्लेन करो। Sir, Mn3 plus rho electronic configuration is equal to argon 4s2 3d. Okay, Mn अच्छा, तो Mn हमें यहाँ पे atomic. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा मैंगनीज का। अच्छा, तो मैंगनीज का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25. 25। अच्छा, तो 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? argon 3d5 4s2 ओके, आर्गन 3d5 4s2 3d5 देन 3d5. 3d5 3d5 होगा। yes sir यस सर। ओके 4s2 3d5। ये आपका कौन सा बोल रहे हो? नॉर्मल स्टेट का बोल रहे हो ना? Yes, sir. sir ओके, नॉर्मल सेट का रहा 4s2 3d5। अच्छा, ये है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया हमने। अभी हमारा दिया गया है क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn+3। Mn+3 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। कहाँ से रिमूव करोगे बेटा? पहले 4s2 इलेक्ट्रॉन, पहले फिर तो 1 इलेक्ट्रॉन। पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? 4s से। s ऑर्बिटल से 4s2 क्यों बेटा 4s से क्यों रिमूव करोगे? क्योंकि वो वैलेंसी शेल है ना, इससे वो Very नहीं good. होगा। क्योंकि 3 इनर वाला है, 4s आपका अंदर बाहर वाला सेल है। दिस इज वैलेंसी सेल, दिस इज योर पेनल्टीमेट सेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप वैलेंसी सेल में आपने लूज कर दिया। हाँ। अभी 2 हो गया, अभी और एक भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये आप 3d सब सेल से लूज करवाना होगा। तो ये बन गया आपका 3d4। 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है d सब सेल में। तो d सब सेल में आपका 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो आपका आता है 1 2 3 4, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 4। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड। C. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, तो इसको हम नहीं करेंगे। और कौन सा ऑप्शन होगा? A. ऑप्शन बी वेरी गुड, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं हम। Which one of the following pair constitute the isoton? ये नहीं करना है मेरे को, ये बहुत इजी हो गया, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। आइसोटोन किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, जिसका न्यूट्रॉन नंबर सेम उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। तो आपको चेक करना है न्यूट्रॉन नंबर किसमें सेम होगा, ठीक है? न्यूट्रॉन नंबर किन दोनों में इक्वल होगा उसी को हम बोलेंगे आइसोटोन। यदि चेक करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। ये करोगे? टाइम दूं या चले आगे चले? ऑप्शन नंबर B. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन नंबर बनेगा 7 और यहाँ पे भी आपका न्यूट्रॉन नंबर बनेगा 7। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द एटम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन था, आई थिंक ये मेडिकल का क्वेश्चन था उनका, जब इंडिविजुअल स्टेट का एग्जाम हो रहा था। Next, do this. The atom of which one of the following element has the highest number of unpaired electron? करो, ये करो। ब्रजेश्वर, यस सर। बेटा बोलो, आज क्या तुम साइलेंट क्यों हो? आंसर करो। क्या कर रहा हूँ? आज साइलेंट क्यों? जल्दी जल्दी करो। साहिल, यस सर। करो करो, क्वेश्चन करो बेटा। आज आंसर चाहिए, साइलेंट नहीं, आंसर करना है। Sir, C. आप लोग आंसर देते हो, मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए। आप लोग डाउट पूछते हो, आप लोग एक्टिव रहते हो, तो आप लोगों को पूछा जाता है। करो, साइलेंट क्यों? Sir, C. ऑप्शन सी। ओके, वेट करते हैं दूसरे बच्चों के लिए, थोड़ा 30 सेकंड दे देते हैं, सब लोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, मैक्सिमम बच्चे, 2 बच्चे आ गए ऑप्शन सी पे। और किसका निकला? ऑप्शन सी।
Very good. Next. Option C. Option C. Okay. ओके ऑप्शन सी आ रहा है आपका आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम चेक कर लेते हैं मैंगनीज के लिए। मैंगनीज के लिए यहाँ पे है आपका 25 आर्ग नंबर। तो मतलब हमने अभी अभी चेक किया, यहाँ पे D5 आता है। तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। 5 अभी अभी हमने चेक किया ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसको पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा 5। अभी आपका आ गया क्रोमियम। क्रोम पे आपका आता है 24। You know the chromium has an 4 exceptional electronic configuration. That is your 3d5 4s1. 3d5 4s1. तो ये इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 5 5। गया गए, आपका -5 हो गया। आपका -5 हो गया। यदि क्वेश्चन पूछता कि क्रोमियम में आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, देन यू विल गेट -5 हियर। पे क्या है? 6 यहाँ पे एक नहीं है क्या? हाँ 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। बेटा ये एंट्रांस का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, इस तरह से आंसर मत दो। -5 हो गया। यहाँ पे आंसर तो आपने ठीक दे रखे हो, लेकिन यदि सिंगल क्वेश्चन ये पूछ लेता कि क्रोमियम 24 पे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप गए -5 हो गया। रैंक आपका 3000 नीचे चले आएगा। तो 3d5 4s1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया यहाँ पे 6। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी वाला एलिमेंट। ओके, 96 दिया गया है बा। 96। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। रेडन, रेडियम, 86, 7s then 7s2 7s2, 5f on 60 5f on एक लोग बोलो, एक लोग बोलो, एक लोग बोलेगा, एक लोग बोलो। 5f 5f E on 61 7s2 5f8 5f8। नहीं सर हाँ 7s रेडन 86, 7s2 5f8 5f8। ओके, ऑल सेम। यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो, कोई एक्सेप्शन है क्या? कोई एक्सेप्शन है क्या इसमें? सर 61। सर 5f7 61। 61। ओके, तो मुझे करेक्ट करके बोलो क्या होगा यहाँ पे? 7s2 61 5f7। ओके, 7s2 61 5f7। ओके बच्चों लग गए, हो रहा है बच्चों लोगों का। 7s2 5f7 देन योर 61। अभी बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे? 8 वेरी 8। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला को चेक करते हैं, आयरन 26 को। आयरन 26 को चेक करते हैं। आयरन 26 का लिखेंगे एटॉम कॉन्फ़िगरेशन। आयरन 18 हो गया हमारा यहाँ पे, देन हो गया 4s2, हो गया 36। क्या हो रहा है ये? 36 4s2 36 argon 4s2 36 argon 4s2 36 argon 4s2 36। Students, just wait for 1 minute. Just wait. You do that. Just there is a call. I have to just go. Just wait. 2 seconds.
क्या निकला बेटा? आयरन का क्या निकला तेरा? Fe26 का argon 18 4s2 3d6. Okay, argon 18 4s2 3d6. What is the number of unpaired electron? 4. 4. d सबसेल पे आपका 5 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया 4. तो Fe में है आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैंगनीज पे आपका बन गया कितना? 5. क्रोमियम पे 6, तो मैक्सिमम आ गया ऑप्शन सी पे. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. सर इसका ठीक है या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या बोल रहे हो बेटा? सुना ही नहीं दे रहा ठीक से. सर यार एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे? कौन सा? ये जो एक से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर, जो क्यूरियम का. अच्छा, ये नहीं बुलाया था क्या? नो सर. अच्छा, लिख लो इसको भी लिख लो. कहीं स्किप हो गया होगा तो लिख लो इसको. ओके, नेक्स्ट. The set of quantum number n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, and s is equal to plus half corresponds to the most loosely bound ground state electron of which one of the following atoms? The set of quantum number n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, and s is equal to plus half corresponds to the most loosely bound ground state electron of which one of the following atoms? Sir, chromium. Beta, hello. So this is your assignment. This question is your assignment. You have to do that question. There is some urgency. I have to go. If there will be any doubt, you can ask in the coming class. Okay? There is some urgency. I have to go. It is already 12:31. question Okay, question I will share in the group. You have to do that questions. Also, I will share